गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां व्याकरण दा चैप्टर समासी शब्द पढ़ांगे। इस विच असीं समास बारे पढ़ांगे कि समास हुंदा की है। आओ हम सब तो पहला समास दी परिभाषा देखिए। समासी शब्द परिभाषा इसकी है, समास का अर्थ है जोड़ना। ਉਹ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹਟਾ ਕੇ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਦ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਜੋੜਨੀ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਜੋੜਨੀ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਲਗਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਾਤ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਸਮਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4 ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਹਰਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ, ਦੁਹਰਾਵੇਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ। ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ। ਸੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਥੀ। ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਜੋੜਨੀ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕੰਮ ਕਾਰ। ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਚਲਾਕ, ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਈ? ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
अगला है विरोधार्थक शब्दां दे सुमेल तो। विरोधार्थक भाव वो दो शब्द जिहड़े कि आपस दे विच विरोधी अर्थ वाले हुंदे हैं, जिन्हां दे अर्थ एकदम उल्ट हुंदे हन, उन्हां दे सुमेल तो बने हुए शब्दां नूं विरोधार्थक समासी शब्द कहंदे हन। जिवें कि उस्तत अते निंदिया। उस्तत मतलब किसी दी शलाघा करनी, निंदिया मतलब किसी दी बुराई करनी। उस्तत अते निंदिया। जदों असीं इस दा समासी बनावांगे की बनेगा? उस्तत निंदिया। अते दी जगह ते की लग जाएगा? इहदे विच जोड़ने की वरतों करांगे, जिन्हों असीं हाइफन कहने हैं, वो वरतों करके असीं इहनूं उस्तत अते निंदिया बनावांगे। अगला है आशा अते निराशा। आशा अते निराशा दे समास नूं असीं की करांगे? आशा निराशा। अते कट के असीं जोड़ने की वरतों करांगे, ये बन गया आशा निराशा। सच अते झूठ। सच अते झूठ विरोधार्थक शब्द हैं, इन्हां नूं असीं अते हटा के की लगावांगे? सच झूठ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ने की वरतों की गई है, ये बन गया सच झूठ। गुण अते अवगुण, ये भी दोनों विरोधार्थक शब्द हैं, इन्हां विच अते हटा के जोड़ने की वरतों की गई है, गुण अते अवगुण बन गया। इस तरह बहुत सारे विरोधार्थक शब्द हैं जिन्हां नूं असीं जोड़ के, जिन्हां दे सुमेल तो असीं समासी शब्द बना सकते हैं। नैक्सट है भिन्न भिन्न अर्थां वाले। भिन्न भिन्न अर्थां वाले मतलब दो ਉਹ शब्द जिन्हां दे अर्थ बिल्कुल भिन्न हुंदे हन, अलग एकदम उल्ट हुंदे हन, पर ਜਿਹੜੇ ਉਹ अर्थ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ भिन्न भिन्न मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਅੰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅੰਨ ਪਾਣੀ। अते दी जगह ते असीं जोड़नी वरतांगे अते अन्न पानी बन जाएगा। हार अते श्रृंगार। अते कट के असीं जोड़नी वरतों करके की बनेगा? है हार श्रृंगार। तन अते मन, इसदा बनेगा तन मन, विच जोड़नी की वरतों करांगे। राम अते लक्ष्मण, इनू असीं की लिखांगे? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण लिखण वेले असीं इहदे विच जोड़नी की वरतों करके इसदा समासी शब्द बनावांगे। अगला है सार्थक अते निरार्थक शब्दां दे सुमेल तो। इसका भाव है कि वह शब्द जिहदे विच के वह समासी शब्द जिहदे विच एक शब्द सार्थक हुंदा है, दूसरा निरार्थक हुंदा है। सार्थक तो भाव वह शब्द जिसका कि कोई अर्थ होवे, निरार्थक तो भाव वह शब्द जिसका अर्थ नहीं हुंदा, पर ये दोवें शब्द इकट्ठे ही आते हैं। निरार्थक शब्द जिहड़े आ हमेशा वो सार्थक शब्दां दे नाल ही मिल के आते हैं, वो इकल्ले नहीं आते। इन्हां सार्थक अते निरार्थक शब्दां दे सुमेल तो जिहड़ा है वह समासी शब्द बनता है। जिवें कि गरीब अते गुरबा। गरीब अते गुरबा का भाव है गरीब गुरबा। गरीब मतलब जिहड़ा गरीब होवे, जिसको किसी चीज़ की थोड़ होवे। गुरबा का कोई मतलब नहीं हुंदा। इहदे विच जिहड़ा गरीब है वह सार्थक शब्द है, गुरबा जिहड़ा है वह निरार्थक शब्द है। पर गुरबा कदे इकल्ला नहीं आ सकता, हमेशा गरीब दे नाल ही आएगा। जदों असीं इहदा समास बनावांगे, इहदे विचों अते कट के जोड़ने की वरतों करांगे अते की बन जाएगा? गरीब गुरबा। पानी अते तानी। असीं कहने कि किसी जदों साडे कोल कोई आंदा है, असीं कहने पानी तानी पियोगे? पानी तानी पियोगे? पानी तो पानी पीना है, तानी का कोई मतलब नहीं हुंदा। अते इस करके जदों असीं निरार्थक अते सार्थक दा बनावांगे अते कट के असीं की लिखांगे? पानी तानी। शोर अते शराबा। शोर शराबा हुंदा है बहुत रौला पैना, बहुत शोर होना। इहदा अते कट के की समास शब्द बनेगा? शोर शराबा। रोटी अते राटी। जिस तरह असीं नॉर्मल कह दिंदे आ कि रोटी राटी खाओगे? रोटी राटी खाओगे, रोटी दा खाओगे, राटी कुछ नहीं हुंदा, पर यह निरार्थक शब्द है, ये रोटी दे नाल ही आंदा है। असीं अते कट के इहदे विच जोड़नी पावांगे, की बन जाएगा? रोटी अते राटी। इस तरह सार्थक अते निरार्थक शब्दां दे सुमेल तो भी समासी शब्द बनते हैं। अगला है वाकंशां दे आधार ते समासी शब्द। वाकंश की हुंदे हैं जिन्हां नूं असीं ਉਹ शब्दां दा समूह जिहड़ा कि एक वाक नहीं हुंदा, पर उसका कोई ना कोई अर्थ हुंदा है। वो अपने आप विच एक पूरा वाक नहीं हुंदा, वो 2 या 3 शब्दां तो मिलके बनिया हुंदा है। इस दे आधार ते असीं कहंदे हां जिवें कि सेवा तो मुक्ति। सेवा तो मुक्ति मतलब किसी नूं जिद्दां असीं रिटायर कर दिंदे हां, सेवा तो मुक्त कर दिंदे हां, इहदा समास की बनेगा? सेवा मुक्ति। स्वै लई रोजगार। स्वै लई रोजगार मतलब अपने लिए रोजगार लभना। स्वै मतलब हुंदा है अपने लिए। जदों असीं इहनूं समास बनावांगे की बनेगा? स्वै रोजगार। इहदे विच जोड़ने की वरतों कीती जावेगी। जन्म नाल संबंधित दिन। हुण जन्म नाल संबंधित दिन की हुंदा है? साडा जन्मदिन हुंदा है ना। इसी तरह असीं इहनूं लिखांगे जन्मदिन, बाकी उहदे विच की लिखांगे? असीं जोड़नी पावांगे, की बन जाएगा? जन्मदिन।
देश दा भगत, देश दा भगत भाव जिहड़ा कि देश की भगती करे, देश दा आदर करे, वो की बन जाता है देश भगत। देश भगत इहदे विच असीं जोड़नी की वरतों करके इसनूं समास बनावांगे। अगला है बच्चे दोहरावे शब्दां दे सुमेल तो। दोहरावे भाव जदों कि इक्को ही शब्द दो वारी वरतिया जाता है उसनूं असीं कहने आ दोहरावे शब्दां दे मेल तो बने समासी शब्द। अजिहे समासी शब्द जिस विच के दोवें शब्द दोहराए गए हुंदे हन, जिवें कि उच्ची अते उच्ची, इहनूं असीं की लिखांगे उच्ची उच्ची अते कट के असीं इहदे विच जोड़नी की वरतों करांगे। 100 अते 100, 100 100 इहदे विच भी अते कट के जोड़नी की वरतों कीती गई है। गल्लां अते गल्लां, गल्लां गल्लां इहदे विच भी अते कट के जोड़नी की वरतों। इहदे विच देखो बच्चे दोवें शब्द जिहड़े बार बार दोहराए गए हैं, बार बार दोहराने वाले शब्दों को असीं कहने आ दोहरावे शब्द। वखरा अते वखरा, वखरा वखरा अते कट के जोड़नी की वरतों कीती गई। समासी शब्दों के नाल नाल बच्चे असीं बहुअर्थक शब्द भी पढ़ांगे। बहुअर्थक शब्द की हुंदा है? वो शब्द जिसदा कि शब्द उही रहिंदा है पर उसके अर्थ बहुत सारे निकल आते हैं। इक्को ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, असीं उसनूं की कहने आ बहुअर्थक शब्द। बहु मतलब बहुत ज्यादा, अर्थक मतलब अर्थ वाले, बहुत अर्थ वाले शब्द, जिस इक्को शब्द जिसके के बहुत ज्यादा अर्थ होण। बहुअर्थक शब्द इसकी परिभाषा की है? हर भाषा विच अजिहे शब्द हुंदे हन जिन्हां दे अर्थ एक तो वधेरे हुंदे हन। अजिहे शब्दां दे वखरे वखरे अर्थ वख-वख प्रसंग जां स्थितियां विच ही प्राप्त हुंदे हन। भाव कि शब्द इक्को ही हुंदा है पर वख-वख स्थितियां, वख-वख हालातां दे विच उन्हां दे अर्थ जिहड़े आ ओह अलग-अलग निकलदे हन। अजिहे शब्दां दे रूप हर स्थिति जां प्रसंग विच बदलदा नहीं है। मतलब जिहड़े ये शब्द हुंदे हन इन्हां दा जिहड़ा स्थिति जां प्रसंग च रूप उन्हां दा शब्दां दा रूप नहीं बदलदा पर जिहड़े उन्हां दे अर्थ हैगे आ ओह बदल जांदे हन। अजिहे शब्दां नूं असीं की कहने हैगे आ बहुअर्थक शब्द। उदाहरण के तौर पर देखो, सब तो पहला बच्चे शब्द है उच्चा। उच्चा, उच्चा का मतलब जब असीं उच्चा शब्द बोलते हैं, उच्चे दे विचों कोई अर्थ जिहड़ा उहदा लै सकदा है उच्ची जगह, असीं कोई कह सकदा है उच्चा बोलना। इसे तरह इसके अर्थ जिहड़े अलग अलग हैं। जिवें कि सब तो पहला इहदा अर्थ की है उच्ची थां, मतलब उच्ची जगह जिहड़ी है। इसका वाक की बनेगा पहाड़ बहुत उच्चा है। जदों भी इसदे विच इहदा वाक बनाना है, वाक बनाने दे समय इसदे विच उच्चा दी ही वरतों की जाएगी। उसका जिहड़ा अर्थ है उसकी जिहड़ी है वरतों वाक विच नहीं होएगी। जिहड़ा शब्द है शब्द की वरतों वाक विच कीती जाएगी। दूसरे नंबर ते उच्चा का की अर्थ है उच्ची आवाज, जिस तरह के उच्ची बोलना, मोहन नूं उच्चा सुनदा है। तीसरा अर्थ है मोचना। मोचना की हुंदा है? इसनूं जिहड़ा है नाई वरतदे हन, जिहड़े साडे वाल कटदे हन नाई, जिन्हों असीं बार्बर कहने हैं, और जिहड़ा इसदा उन्हां दा एक ये औजार हुंदा है। उच्चा वाल पुट्टण लई वरतिया जांदा है। हुण देखो बच्चे इन्हां सारे वाकां दे विच उच्चा 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 ही वरतिया गया है। इहदे विच जिहड़ा उन्हां दे अर्थ हन उन्हां दी वरतों नहीं की गई। असीं वाक दे विच सिर्फ उच्चा शब्द ही वरतना है, अर्थ नूं नहीं वरतना। नंबर 2 ते है उत्तर। उत्तर का एक मतलब की हुंदा है जवाब। इस प्रश्न का उत्तर लिखो। एक उत्तर की हुंदा है दिशा। असीं उत्तर दिशा जिन्हों असीं नॉर्थ साइड कहने हैं, उत्तर दिशा पंजाब भारत के उत्तर विच है। एक है थल्ले आना, जिद्दां कोई छत उपर गया असीं उहनूं कहने आ थल्ले उतर, थल्ले आना, छत तो उतर जाओ। इस विच भी देखो बेटा सिर्फ उत्तर शब्द की ही वरतों की गई है, जिहड़ा अर्थ है उसनूं नहीं वरतिया गया। अर्थ इन्हां सब दे अलग अलग हैं। जदों असीं वाक बनाने हैं, वाक तो सानूं उन्हां दे अर्थ दे बारे पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर 3 ते है आकड़। आकड़ हुंदा है सख्त हो जाना, जदों कोई चीज़ आकड़ जाती है। ठंड नाल प्लास्टिक दीयां वस्तुआं आकड़ जांदियां हन। इसका अगला अर्थ की है हंकार, जो साडे च घमंड आ जाता है। कई लोकां विच अमीरी सदका आकड़ हुंदी है, मतलब कई लोग अमीर हुंदे हन पर अमीर करके उन्हां विच आकड़ भी बहुत आ जाती है। सिक्का। सिक्का का मतलब की हुंदा है एक धात। एक यह धात है एक जिसनूं कि असीं लैड कहने हैं। सिक्का बहुत महंगा हुंदा है, जिस तरह तुसीं पेंसिल्स यूज करते हैं ना, उहदे विच भी जिहड़ा लैड ही यूज हुंदा है। रोब। रोब मतलब किसी दे उत्ते रोब पाना। नेतावां दा हर थां सिक्का चलदा है, सिक्का चलदा है, उन्हां दा रोब हर जगह ते चलदा है। भारतीय करंसी, असीं सिक्का जिन्हों कॉइन कहने हैं, भारतीय करंसी, ये 2 रुपए का सिक्का है।
भाव कि मतलब जिहड़ा 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का कॉइन है। बच्चे उम्मीद है कि थानू समासी शब्द ते बहुआर्थक शब्द जिहड़े समझ लग गए होणगे। तुसीं अपनी व्याकरण दीआं बुक्स दे विचों इन्हां नूं जरूर एक बारी पढ़ना है ते नाल संबंधी जिहड़ी वर्कशीट है अपनी कापियां दे उपर साफ-साफ करनी है। थैंक यू।